Good morning, friends. Good morning, sir. Yeah. In the last session, यानी कि 3 sessions, we discuss the share capital only. Yeah. 4 sessions practically. Now today is the 5th session. यानी कि 1 session we discuss the audit of the share capital basic parts. It is application, allotment, first call, final call. In second session we discuss the buyback, complete audit of buyback. In the third session, we discuss the sweat equity shares, audit of calls in arrears, calls in advance. In fourth session, we discuss the audit of preference shares, audit of bonus shares that we discuss. And today is the 5th session. In this session, we will discuss the audit of debenture. Audit of debenture. Yeah. Let me clarify one thing. Issue of debenture, that will remain same like issue of shares. In case of issue of debenture as well, application money, allotment money, first call, final call, that will remain same. तो नॉर्मली इश्यू में भी यहाँ जो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम आता है फेस वैल्यू से एट पार इश्यू होता है, दैट प्रोसीजर विल रिमेन सेम. अगर यहाँ जो एडिशनल पॉइंट है दैट वी शुड फोकस. यस, लेट अस बिगिन point to point. Number 1, verify whether the allotment was made having regard to the terms and conditions contained in the prospectus. जिस तरह से इक्विटी में होता है, प्रेफरेंस में होता है, प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशन है अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट होना चाहिए. वेरीफाई वेदर द एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन फॉर डिबेंचर्स इंटेंडेड टू बी सो ऑफर टू द पब्लिक टू बी डेल्ट विथ इन द स्टॉक एक्सचेंज. मीनिंग दैट हमने स्टॉक मार्केट को BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन किया है. Examine that. Third, ascertain that the directors, while issuing the debentures, had acted within their powers having regard to the restriction contained in section 180 and any further restriction which may be contained in the articles of association. Meaning that debenture is a loan, equity is a capital. तो डिबेंचर इज अ लोन, तो लोन लेने के लिए कंपनी में जो रिस्ट्रिक्शन है, कंपनी लॉ में जो रिस्ट्रिक्शन है सेक्शन 180 में, वो सभी रिस्ट्रिक्शन की बाउंड्री में ही डिबेंचर इश्यू किया है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसकी बाउंड्री में ही डिबेंचर इश्यू किया है. एग्जामिन दैट. मीनिंग दैट वी शुड एग्जामिन दैट कि ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन properly complied with. Yeah. Number 4, ensure that issue of debentures with an option to convert such debenture into shares wholly or partly at the time of redemption are approved by the special resolution passed at the general meeting. अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करना है, आपको भली बात ही पता है कन्वर्टेबल डिबेंचर मींस आज वो डिबेंचर है, फ्यूचर में इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करना है तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. इक्विटी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. बी क्लियर. तो वो एग्जामिन दैट रेजोल्यूशन. वेरीफाई दैट नो कंपनी शैल इश्यू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स. बी क्लियर. डिबेंचर को कोई वोटिंग राइट नहीं होता. डिबेंचर को जनरल मीटिंग में कोई वोटिंग राइट नहीं है. इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैव द वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग. कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे विल कैरी द वोटिंग राइट. डिबेंचर्स can never carry the voting right. तो एग्जामिन दैट कि ऐसा नॉन कैरिंग वोटिंग राइट वाला डिबेंचर ही इश्यू किया है. नेक्स्ट, कंफर्म द कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and rule 18 of the companies rules 2014. The terms and conditions are: number 1, the issue of secured debenture may be made provided the date of its redemption shall not exceed 10 years from the date of its issue. From the date of issue, it is also provided that the company engaged in setting up of the infrastructure project may issue secured debenture for a period exceeding 10 years but not exceeding 30 years. Meaning that यहाँ देखो डिबेंचर की मैक्सिमम सिक्योर डिबेंचर आप इश्यू कर रहे हो, मैक्सिमम टर्म कितनी होगी? मैक्सिमम टर्म वुड बी 10 years. तो मैं इसमें दो पार्ट डिवाइड कर दूँ, फॉर नॉर्मल कंपनी, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. For normal company, for normal purpose, the maximum tenure is 10 years. For infrastructure project company, the tenure
मे बी मोर देन 10 ईयर, बट मैक्सिमम 30 ईयर्स, बी क्लियर। 30 ईयर्स से ज्यादा पीरियड का डिबेंचर नहीं हो सकता, डिबेंचर की लाइफ नहीं हो सकती, यानी कि विद इन 30 ईयर्स यू विल हैव टू रिडीम। प्रेफरेंस में भी मैंने पढ़ाया था, प्रेफरेंस में था 20 ईयर्स नॉर्मल कंपनी, एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मोर देन 20 ईयर्स इट इज अलाउड। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स shall be secured by creation of charge on the properties or assets of the company having a value which is sufficient for the due repayment of the amount of debentures and interest thereon। जब भी सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू किया जाता है तो कंपनी की असेट्स के सामने वो उसको सिक्योर्ड किया जाता है। तो चेक कर लो, अगर 100 करोड़ का डिबेंचर है तो सामने 100 करोड़ की असेट सिक्योरिटी में होनी चाहिए, बी क्लियर। तो डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट कवर्ड हो जाना चाहिए। थर्ड, द कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी before issue of prospectus or letter of offer for subscription of its debenture and not less than 60 days after the allotment of the debenture execute a debenture trust deed to protect the interest of the debenture holder। यहाँ देखो, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू किया जा रहा है तो कंपनी डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाएगी एंड ट्रस्टी को अपॉइंट करेगी। वो ट्रस्टी क्या है? ट्रस्टी विल एक्ट एंड विल टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। ट्रस्टी का काम क्या रहेगा कि कंपनी में कोई ऐसा काम ना हो कि डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो, या डिबेंचर होल्डर को, यानी कि डिबेंचर होल्डर की कोई भी क्वेरी है तो वो ट्रस्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रस्टी विल रिप्रेजेंट बिफोर द कंपनी। कंपनी में कोई ऐसी चीज नहीं होने देंगे वो ट्रस्टी, क्या कि जो डिबेंचर होल्डर को नुकसान हो। उसकी सिक्योरिटी है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट है, उसका रीपेमेंट टर्म्स है, अकॉर्डिंगली सभी कंडीशन ट्रस्ट डीड में जो भी कंडीशन लिखी है वो सभी कंडीशन का कंप्लायंस करवाएंगे, बी क्लियर। क्या? तो डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर के केस में डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाया जाएगा एंड डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा। द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर बाय वे ऑफ चार्ज और मॉर्गेज shall be created in favor of debenture trustee on any specific movable property of the company not being in the nature of pledge or any specific immovable property wherever situated or any interest therein, meaning that जो भी सिक्योरिटी क्रिएट होगा, समझ लो 100 करोड़ का डिबेंचर है तो 100 करोड़ का सामने मॉर्गेज करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। वो चार्ज किसके फेवर में क्रिएट किया जाएगा? डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में, बिकॉज डिबेंचर ट्रस्टी रिप्रेजेंट्स द ऑल डिबेंचर होल्डर्स। तो चेक कर लो कि प्रॉपर चार्ज क्रिएट हुआ, तो आपको सिक्योर्ड डिबेंचर में चेक कर लेना चाहिए उसका टेन्योर 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, प्रॉपर चार्ज क्रिएट किया है, डिबेंचर ट्रस्टी बनाया है, डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की है एंड डिबेंचर ट्रस्टी की फेवर में मॉर्गेज या तो चार्ज क्रिएट किया है। तो क्या है? डिबेंचर ट्रस्टी विल टेक केयर, विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, बी क्लियर। दैट इज अ रीजन। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। और आपको यहाँ इश्यू में और पॉइंट भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन मनी बराबर आई है, चेक कर लो, उसका अकाउंटिंग बराबर हुआ है। अलॉटमेंट मनी बराबर आई है, उसका अकाउंटिंग बराबर हुआ है, बराबर अप्रूवल लिया, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के लिए भी चेक कर लो, या तो वो 4 पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एज टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन। देखो, सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that where debenture are issued by a company under section 71, the company shall create a debenture redemption reserve account out of the profit of the company available for payment of dividend, यानी कि free reserve, and amount credited to such account shall not be utilized by the company except for redemption of the debenture। तो सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ये स्पेसिफाई कर रही है। समझ लो, डिबेंचर हमने इश्यू किया, 10 साल की लाइफ है, 10 ईयर्स की लाइफ है, तो 100 करोड़ का डिबेंचर इश्यू किया तो एवरी ईयर आपको कुछ प्रोविजन करता जाना चाहिए। एवरी ईयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल खत्म होता है बाद में आप बोलते हो कि चलो अभी वो 100 करोड़ का अरेंजमेंट करो और पे करो, तो वो अरेंजमेंट नहीं होगा। उससे बेटर है कंपनी को क्या करना चाहिए, एवरी ईयर प्रॉफिट में से उतना प्रोविजन करते जाओ। समझ लो 1/10, टोटल 100 करोड़ है तो एवरी ईयर 10 करोड़ का प्रोविजन कर लो ना, 1/10 प्रोविजन करते जाओ। पीएनएल में से ट्रांसफर कर दो डीआरआर में, एंड डीआरआर में आपने ट्रांसफर कर दिया और सामने इन्वेस्टमेंट कर दो, क्या? तो धीरे 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 10 साल में कंप्लीट एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब रिडेम्पशन का डेट आएगा तब आप प्रॉपर्ली रिडीम कर पाओगे, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। तो आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। रूल 18 सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 रिक्वायर्स दैट कंपनी शुड क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन गिवन बिलो, ए बी सी।
The debenture redemption reserve shall be created out of profit of the company available for payment of dividend. Meaning thereby DRR would be created out of free reserve. Free reserve means P&L और general reserve. उसमें से DRR create होगा. The company shall create DRR equivalent to notified rate at least 25% of the amount raised through debenture issue before debenture redemption commences. जब डिबेंचर का रिडेम्पशन स्टार्ट होता उसके पहले एटलीस्ट 25% रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए. इनफैक्ट 100% रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए, बट यहाँ लो में लिखा मिनिमम 25% क्रिएट हो जाना चाहिए. क्या प्रूडेंट प्रैक्टिस तो ये बोलती है कि जब रिडेम्पशन का टाइम आए तो 100% रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए. Every company required to create DRR shall on or before 30th day of the April in each year invest or deposit as the case may be a sum which shall not be less than 15% of its debentures maturing during the year ending on 31st day of the March of the next year in any of the specified securities. Meaning that आपका नेक्स्ट ईयर में जितना भी रिडेम्पशन आ रहा समझ लो 100 करोड़ का रिडेम्पशन आ रहा तो एटलीस्ट 15% आपको स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कर देने का डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए. हाँ, तो करंट ईयर में 30 अप्रैल के पहले आपको एटलीस्ट 15%, यानी कि 100 करोड़ है तो 15 करोड़ को सेपरेट पार्क कर दो और सेपरेट उसकी एफडी बना दो या तो सेपरेट इन्वेस्टमेंट रखो. क्यों? जब जरूरत पड़े तब हम इजीली उसको रिडीम कर पाए. क्या? तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ओनली. अगर कन्वर्टेबल पोर्शन है तो उसको रिडीम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी विल इश्यू द इक्विटी. जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके पोर्शन का ही आपको डीआरआर क्रिएट करना है. द अमाउंट क्रेडिटेड टू डीआरआर शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर. जो डीआरआर में फंड पड़ा है वो डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए ही यूज किया जाएगा. बी क्लियर. Yes, for verification of allotment. Normally, auditor should take the following step for such verification. क्या? Verify that ये allotment है, डिबेंचर allotment. Allotment तो सेम ही होगा, जो इक्विटी में हमने पढ़ा था वो यहाँ सेम होगा. देख लो. Verify that the prospectus or the statement in lieu of prospectus had been duly filed with the ROC before the date of allotment. Properly prospectus issue किया है, properly file किया है. Prospectus की सभी terms and conditions check कर लो as an auditor. Check the application for debenture, underline the word application. तो ये एप्लीकेशन लेवल का पॉइंट है. बाद में अलॉटमेंट का आएगा, बाद में फर्स्ट कॉल का आएगा. तो देखो, चेक द एप्लीकेशंस फॉर द application for the debenture with application and allotment book to verify that the name address of the applicant and the number of debentures applied for are correctly recorded. Meaning that आपको एप्लीकेशन की पूरी डिटेल चेक कर लो, कितनी एप्लीकेशन आई है, कितनी अमाउंट आई है, उसका पूरा रजिस्टर जो मेंटेन किया वो थरोली चेक कर लो, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉपर चेक कर लो, एप्लीकेशन मनी का बराबर अकाउंटिंग किया है. वेरीफाई द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स बाय रेफरेंस टू डायरेक्टर्स मिनट बुक. आपको पता है पहले एप्लीकेशन मनी आती है, बाद में अलॉटमेंट के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और बाद में अलॉटमेंट होगा. क्या? तो उसके लिए आपको डायरेक्टर्स की मिनट बुक चेक करनी पड़ेगी, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा. नंबर 3, vouch the amount collected as are entered in the cash book with the counterfoil of receipt issued to the applicant and also trace the amount into the application and allotment book. Meaning that जो एप्लीकेशन मनी है वो एप्लीकेशन मनी आ गई है, वो बैंक बुक में कैश बुक में थरोली क्रॉस टेली कर कंप्लीटली, बाद में उसका अलॉटमेंट होना चाहिए. चेक पोस्टिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट thereof from the application and allotment book into debenture register. Meaning that आपने अलॉटमेंट मनी, जब आपने डिबेंचर अलॉट किया तो अलॉटमेंट मनी का भी आप परफेक्टली ऑडिट कर लो. इसमें क्या चेक करोगे? बोर्ड रिजोल्यूशन चेक कर लो, बोर्ड रिजोल्यूशन में जो कोई टर्म्स रखा है तो वो टर्म्स कंडीशन चेक कर लो, अलॉटमेंट मनी आ गई वो इंश्योर कर लो, अलॉटमेंट मनी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया वो चेक कर लो. यस, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ वो चेक कर लो. वेरीफाई द एंट्रीज ऑन द काउंटरफॉइल्स ऑफ द डिबेंचर इश्यूड विद द डिबेंचर रजिस्टर. एंट्री हो गया. Extract balances in debenture register in respect of amount paid by debenture holder and agree their total with the balance in the debenture account in general ledger. Meaning thereby application and allotment की मनी 100% क्रॉस टेली हो रहा है, चेक कर लो. अगर कुछ एक्सेस आया है तो उसको रिफंड करना पड़ेगा. Examine a copy of debenture trust deed. This is important point.
क्योंकि सिक्योर डिबेंचर के केस में आपको डिबेंचर ट्रस्टेड बनाना है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है और उसकी फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट करना है, मॉर्गेज क्रिएट करना है। क्यों? बिकॉज डिबेंचर ट्रस्टी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो एग्जामिन द कॉपी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एंड उसकी ऑल कंडीशंस। If next point, if the debentures are covered by the mortgage or charge, it should be verified that charge has been correctly recorded in the register of mortgage and charges, and that it has also been registered with the ROC. Further, the charge is clearly disclosed in the balance sheet, meaning that अगर डिबेंचर ट्रस्टी की फेवर में अगर चार्ज क्रिएट किया है तो चार्ज हमारी चार्ज रजिस्टर में आ गया, कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है मॉर्गेज एंड चार्ज का, उसमें एंट्री हो गई, आरओसी में इंटीमेट कर दिया, बैलेंस शीट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया, उसका कंप्लीट केयर किया जाए। कंप्लायंस विद द सेबी गाइडलाइंस आल्सो शुड बी सीन, यानी कि सेबी का रूल जो है उसका जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपर्ली फॉलो किया है, वो भी चेक कर लो। Whether debentures have been issued as fully paid up to vendors as part of purchase consideration, the contract in this regard should be referred to. मर्जर में आप करते हो ना, मर्जर में कोई असेट परचेस करते हो तो कैश नहीं है आता डिबेंचर के पास, उसके पास असेट आई, हमने डिबेंचर इश्यू किया, दैट इज कॉल्ड नॉन कैश, यानी कि डिबेंचर इश्यूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन। तो उसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट की सभी टर्म्स चेक कर लो। अगर 100 करोड़ की हमने असेट खरीदा, सामने 100 करोड़ का डिबेंचर इश्यू किया, तो एंट्री क्या पास होगा, असेट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो उसका थरोली एग्रीमेंट चेक कर लो। या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम से डिबेंचर रिडम्पशन हो सकता है, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। क्या, अगर इश्यू के टाइम पे प्रीमियम आता है तो इट इज अ गेन, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होता है तो दैट इज अ लॉस। वो लॉस आता है, इट हैज टू बी रिटन ऑफ, इट हैज टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट पीएनएल या तो अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर गेन है तो वो रिजर्व साइड होता है, लॉस है तो वो असेट साइड होता है, तो दिस असेट साइड शुड बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द गेन, अगेंस्ट द रिजर्व्स। बी क्लियर। The provision for premium payable on redemption of debentures may be made in either way. Number one, total amount of premium payable on redemption may be debited to an account denominated as loss on issue of debenture. आपने अकाउंटिंग में देखा होगा, आपने डिबेंचर अकाउंटिंग देखा होगा FY में, तो उसमें रिडम्पशन के टाइम पे आप ये अकाउंट क्रिएट करते होगे, जो भी लॉस है, प्रीमियम का लॉस है, उसका हम प्रोविजन कर लेते हैं डे 1 पे, एंड इट इज डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। या हम डे 1 पे जब डिबेंचर इश्यू किया ना, तभी ये अकाउंटिंग एंट्री कर लेते हैं। समझ लो, हम डिबेंचर की नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर बैंक टू डिबेंचर। अगर प्रीमियम के टाइम पे अगर रिडम्पशन के टाइम पे अगर प्रीमियम से हम रिपे करने वाले हैं तो इश्यू के टाइम पे एंट्री पास कर लेने का। क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन, तो लॉस हमने डेबिट कर दिया आज, और वो लॉस है ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर, इट शुड बी रिटन ऑफ ओवर द पीएनएल अकाउंट। Yeah, it should be written off against the P&L account. Yeah, be clear. Number two, the fact that the debenture will have to be redeemed at a premium may be disclosed by way of note in the balance sheet along with the date of redemption. And as and when redemption is made, the amount paid as a premium should be debited to premium on redemption debenture account. Yeah, ये accounting part है, you have already seen in the accounting chapter. तो भी मैंने आपको एक रिपीट करके बताया कि अभी ही इनिशियल लेवल पे ही जो प्रीमियम का लॉस है उसका प्रोविजन कर लेने का, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर आपको पे करना है, हो सकता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या तो एनुअली। देख लो डिबेंचर इश्यू की टर्म्स में क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपको भली बात ही पता होना चाहिए, डिबेंचर इज एज गुड एज लोन, तो उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और बिफोर इक्विटी डिविडेंड एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, दोनों डिविडेंड की पहले डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो देखो, payment of interest should be vouched with the acknowledgement of the debenture holder, endorsed warrant, and in case of bearer debentures with the coupon surrender. The total amount paid should be reconciled with the total amount due and payable with the amount of interest outstanding for payment. मतलब जितना इंटरेस्ट आ रहा, समझ लो 100 करोड़ का डिबेंचर है, 10% इंटरेस्ट है तो कितना आएगा, 10 करोड़। तो 10 करोड़ का करंट ईयर में पीएल में डिबेंचर एक्सपेंडिचर डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट हो गया, उतना पे हो गया, उसमें टीडीएस अगर एप्लीकेबल है तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया, सब कुछ, और उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ, वो थोरोली चेक कर लो, प्रॉपर्ली ऑडिट कर लो। या नेक्स्ट, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल वेदर और नॉट एनी प्रॉफिट इज मेड, देयरफॉर अ प्रोविजन शुड बी मेड अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली अग्रीड विद द डिबेंचर होल्डर दैट इंटरेस्ट इन सच केस वुड बी पेड बाय देम। आपको भली बात ही पता होना चाहिए
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इट इज एज गुड एज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो ये तो मैंडेटरी पेमेंट है, फिक्स रेट होता है, मैंडेटरी पेमेंट है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट होता है तो पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होता तो नहीं करेंगे। ये तो मैंडेटरी पेमेंट करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, वो तो प्रॉफिट होता है तो पे करते हैं। इट इज अ शेयरिंग, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। बट ये जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट है, बैंक लोन पे इंटरेस्ट है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। बी क्लियर। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स लाइक दैट ऑन अदर फिक्स लोन जो है ना, मस्ट बी डिस्क्लोज एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन द पीएनएल अकाउंट। बी क्लियर। आपको पीएनएल में बोरोइंग कॉस्ट में उस अंडर द बोरोइंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट आपको सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिबेंचर के सभी पॉइंट आ गए। डिबेंचर इश्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन, इंटरेस्ट, ये सभी पॉइंट्स हमने डिबेंचर के बारे में कवर कर लिया है। या so that was all about the debentures. Yeah. Please wait. Now we are going for the next topic, यानी कि it is all about the dividend. It is a divisible profit, distributable profit. आपको पता है प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर होता है, प्रेफरेंस को एंड इक्विटी को। बी क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इट इज ऑडिट ऑफ डिविडेंड। ऑडिट ऑफ डिविडेंड मैं आपको मटेरियल शेयर करता हूँ, प्लीज वेट। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, या डिविजिबल प्रॉफिट, या यहाँ देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड किसको बोलते हैं? अगर हम वाइडर लेवल पे बोले तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। हम समझ लो एक पार्टनरशिप फर्म करते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो नॉर्मली क्या होता है, समझ लो पार्टनरशिप फर्म है, उसने 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, दो पार्टनर है 50-50% का। तो 1 करोड़ पे पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगी 30 लाख, फॉर एग्जाम्पल 30 लाख इनकम टैक्स है, तो बैलेंस 70 लाख बचा। वो 70 लाख क्या होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है 35 लाख, बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। तो इस तरह से कंपनी में भी होता है। कंपनी ने समझ लो 1 करोड़ प्रॉफिट किया, 30 लाख टैक्स पे किया, तो बैलेंस इज 70 लाख। तो 70 लाख अगर कंपनी चाहे, शेयरहोल्डर्स चाहे, तो बाय वे ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। तो डिविडेंड इज नथिंग, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द शेयरहोल्डर्स। बिग क्लियर। वो इसमें डिविडेंड में नॉर्मली ऐसा होता है, बोर्ड विल प्रपोज करेगा कि इतना डिविडेंड दे सकते हैं, कंपनी की पोजीशन देख के, कंपनी के पास कितना कैश है उसके बेसिस पे, क्योंकि बोर्ड हर रोज कंपनी के वर्किंग पोजीशन में है, कंपनी की वर्किंग कंडीशन वो थरोली जानते हैं। तो बोर्ड विल डिसाइड कि वेदर टू पे डिविडेंड, यस और नो। वंस द बोर्ड प्रपोज, बाद में शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरहोल्डर्स अप्रूव कर दे कि चलो 10% डिविडेंड पे किया जाए। बोर्ड ने प्रपोज किया था 10%, तो शेयरहोल्डर्स बाद में अप्रूव कर देगा चलो 10% डिविडेंड दिया जाए। तो एक बार शेयरहोल्डर्स ने अप्रूव कर दिया तो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है एंड कंपनी विल पे टू द शेयरहोल्डर्स। तो दैट इज नथिंग, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द शेयरहोल्डर्स। तो जो यहाँ लिखा है मीनिंग में, a dividend is a distribution of a portion of the company's earning, means profit, decided by the board of directors to class of its shareholders. A share of after-tax profit of the company distributed to its shareholders according to the number or class of shares held by them is called dividend. It is nothing, it is a distribution of the profit to the shareholders. Amount and timing of the dividend is declared by the board of directors, who also determine whether it is paid out of the current year profit or past year profit. मतलब डिविडेंड दोनों में से डिक्लेयर होता है। करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर करंट ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी के पास पास्ट ईयर का प्रॉफिट पड़ा है, उसमें से भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। पास्ट ईयर के प्रॉफिट मींस इट इज अ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में से भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। या हम आगे देखेंगे डिटेल में। होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट एंड आर पेड फर्स्ट।
आपको प्रेफरेंस डिविडेंड में पता होगा, आपने आज तक अकाउंटिंग में देखते आए 11 से लेके टी तक, तो आपने देखा होगा प्रेफरेंस कैपिटल जहां भी होगी ना वहां लिखा होगा 12% प्रेफरेंस कैपिटल। वो 12% क्या है? वो डिविडेंड का रेट है। तो डिविडेंड प्रेफरेंस के केस में फिक्स डिविडेंड, मगर इक्विटी के केस में इट इज एन अनलिमिटेड डिविडेंड, कितना भी डिविडेंड आप दे सकते हो, बी क्लियर। तो प्रेफरेंस में फिक्स डिविडेंड है एंड प्रेफरेंस होल्डर को पहले डिविडेंड पे किया जाता है कंपेयर टू इक्विटी होल्डर्स। However, preference holders are not entitled to treat the preference dividend as a debit and sue for its payment. However, if the article specify that the company's profits shall be applied by way of payment of preference dividend, the preference holders can sue for it even though it has not been declared. Meaning that preference dividend अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो कंपनी पे करेगी, कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता तो कंपनी पे नहीं करेगी। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। अगर पे नहीं किया करंट ईयर में तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस के केस में इट वुड बी क्यूमुलेटेड एंड नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो 2 साल का पे करना पड़ेगा। एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस में अगर प्रॉफिट नहीं होता तो वो लेफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर का ही पे करना है। या होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अमाउंट ऑफ डिविडेंड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ प्रॉफिट। इक्विटी होल्डर्स को कितना भी डिविडेंड मिल सकता है, 100%, 200%, 300%, कितना भी, कंपनी के पास जितना ज्यादा प्रॉफिट है उतना कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, नो लिमिट। इक्विटी इसलिए बोला जाता है ना, इक्विटी आर द रियल ओनर्स, इक्विटी इज द रिस्की कैपिटल। क्यों? अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है तो नो डिविडेंड। या एंड द कंपनीज नीड्स फॉर कैश फॉर एक्सपांशन फॉर अदर पर्पस, यानी कि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करेंगे एंड विल डिसाइड कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है। डिविडेंड डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूड एनी इंटरिम डिविडेंड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड किसको बोलेंगे? जो नॉर्मली एजीएम में डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयरहोल्डर्स में डिक्लेयर होता है। फाइनल डिविडेंड दो समझ लो, एजीएम 1, एजीएम 2, करंट ईयर का एजीएम, नेक्स्ट ईयर का एजीएम। एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है दैट इज फाइनल डिविडेंड, मगर इन बिटवीन दो एजीएम के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। काफी कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड डिक्लेयर करती है, काफी कंपनी हाफ ईयरली डिविडेंड डिक्लेयर करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। बिग क्लियर? या तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। मैं दोनों डिविडेंड में क्लियर कर दूं। इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड विल डिक्लेयर, बोर्ड के पास ही पावर है, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए। एंड फाइनल डिविडेंड 2 लेवल है, बोर्ड विल प्रपोज and shareholders will approve. Board will propose and shareholders will declare. Be clear? दोनों लेवल के अप्रूवल चाहिए। I hope it is clear to you. The power to pay dividend is inherent in a company and is not derived from the Companies Act 2013 or the memorandum or the articles. Although the act and articles regulate the manner in which dividend are to be declared. मतलब it is an inherent power of the company. Company can distribute its profit, no problem at all, no doubt at all. Right to claim the dividend will only arise after a dividend is declared by the company in general meeting. जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, बाद में आपको पे करना ही पड़ेगा शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर का राइट क्रिएट हो गया, राइट टू रिसीव द डिविडेंड। अगर आप पे नहीं करोगे तो शेयर होल्डर कोर्ट में जा सकते हैं। एक बार डिक्लेयर हो जाने के बाद बोर्ड ने प्रपोज किया, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अप्रूव हुआ, डिक्लेयर हुआ, बाद में कंपनी की लायबिलिटी बन गई डिविडेंड। क्यों? अब तो पे करना ही पड़ेगा। क्यों? एंड शेयर होल्डर्स का राइट बन गया, शेयर होल्डर्स कोर्ट में जा सकते हैं क्या, और वो क्लेम करने के लिए। एंड अनटिल एंड अनलेस इट इज सो डिक्लेयर्ड द शेयरहोल्डर्स हैज नो क्लेम अगेंस्ट द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट। जब तक शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ डिविडेंड, तब तक शेयरहोल्डर के पास कोई राइट नहीं है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट इन वन ऑफ द केस वाज इम्प्रूव्ड अपॉन बाय द सुप्रीम कोर्ट, सेइंग दैट the right to participate in the profit exists independent of any declaration of the company, with only difference that the enjoyment of profit is postponed until the dividend are declared. Meaning thereby, जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता, यानी कि बोर्ड ने प्रपोज किया, शेयरहोल्डर्स ने अप्रूव किया, तो दैट इज कॉल्ड डिक्लेयर। बाद में ही कंपनी की वो लायबिलिटी बनती है एंड शेयरहोल्डर्स का राइट बनता है डिविडेंड रिसीव करने का। अगर बोर्ड ने अप्रूव किया, बोर्ड ने प्रपोज किया मगर शेयरहोल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, तो इट इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, शेयरहोल्डर्स का डिविडेंड रिसीव करने का कोई राइट नहीं। बी क्लियर? या आई होप इट इज क्लियर टू यू। समझ लो, बोर्ड ने प्रपोज ही नहीं किया, शेयरहोल्डर्स ने अप्रूव ही नहीं किया, तो इट इज नॉट अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी।
एंड इट इज नॉट अ राइट ऑफ द शेयरहोल्डर्स। तो शेयरहोल्डर्स कोर्ट में नहीं जा सकते वो डिविडेंड रिसीव करने के लिए। तो मैं इतना बोल सकता हूं, समझ लो कंपनी में प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ का, ये किसको पता होता है कि 5 करोड़ कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंपनी के लिए एक्सपेंशन के लिए चाहिए नहीं चाहिए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी सिचुएशन 360 डिग्री एंगल से 360 डिग्री एंगल से वो चेक करेंगे, मैच्योर डिसीजन लेंगे कि कंपनी के पास हमको जो एक्सपेंशन के लिए फंड चाहिए वो सभी फंड का प्रोविजन करने के बाद कुछ कैश पड़ा है, यस, तो बोर्ड विल प्रपोज द डिविडेंड एंड शेयरहोल्डर्स विल अप्रूव द डिविडेंड एंड तो डिविडेंड पे किया जाता है। अगर कंपनी को फंड चाहिए एक्सपेंशन के लिए उसके लिए तो तो बोर्ड विल नॉट प्रपोज द डिविडेंड एंड कंपनी विल नॉट पे द डिविडेंड। बी क्लियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड। मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले आपके सामने रखा था, क्या? इट इज अ फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। दो कैटेगरी का डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड किसको बोलेंगे? फाइनल डिविडेंड जो एजीएम में डिक्लेयर होता है, यानी कि बोर्ड प्रपोज करेंगे, शेयरहोल्डर्स डिक्लेयर करेंगे, अप्रूव करेंगे, दो अप्रूवल चाहिए। एंड इंटरिम डिविडेंड दो एजीएम के बीच में अगर कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। और किसके पास पावर है? ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड के पास पावर है। या बी क्लियर। तो क्या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एज पर सेक्शन 123 और बाद में जो उसका डिटेलिंग है कि डिविडेंड के लिए डिक्लेरेशन के लिए क्या क्या स्टेप करना पड़ेगा, कौन से प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स। करंट ईयर के प्रॉफिट में, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। क्या क्या प्रोसीजर है, कितने दिन में डिविडेंड शेयरहोल्डर को दे देना, पे कर देना है, अगर पे नहीं किया तो कहाँ ट्रांसफर करना है, ऑल प्रोविजंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का सेशन है, मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। इन द नेक्स्ट सेशन we will discuss the entire procedure of dividend declaration and dividend payment. Dividend declaration and dividend payment. Yeah. Audience, if you have any question, please raise your doubt, please.